So next topic is your strong acids and weak acids. Okay, so basically this whole category of acids, it can be divided into sorry, it can be divided into two types. That is your strong acids and weak acids. Strong acids में सारे mostly mineral acids आएंगे. For example, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. All these are very strong acids. And weak acids में आपके पास acetic acid आता है, formic acid आता है, citric acid जो fruits में मिलता है. Tamarind में you have this tartaric acid. Carbonic acid is one of the mineral acid which is quite weak in nature. So if you have like got the opportunity to visit a lab, chemical lab, आपके स्कूल में chemical lab होती है, वहाँ पे जाओगे तो आपको डिफरेंट एसिड्स के बॉटल्स मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में मेंशन होगा दैट इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन नेचर एंड हार्मफुल ऑल्सो. वो चीज आपको ध्यान रखना है. So write down here all the acids are divided into two types. Strong acids and weak acids. For strong acids, examples are, you have to write down the notes with the class. क्लास के साथ साथ में नोट्स लिखो. डोंट जस्ट सिट देयर staring at the screen. You have to write the notes along with the class. Is your hydrochloric acid, which is your HCl, sulfuric acid, which is your H2SO4, nitric acid, that is your HNO3. And if we talk about the weak acids, then you have acetic acid, formic acid, citric acid, tartaric acid, and carbonic acid. Acids for citric acid and tartaric acid, the formula is quite long, so I'm not writing here. Acetic acid, it is CH3COH. For formic acid, HCOOH. And for carbonic acid, H2CO3. So these are along with the formulas of different types of acids. Write down this. Done? Now, mostly your strong acids are quite like dangerous to even touch and dangerous to consume. Okay, strong acids को हमको अपने bare skin से touch नहीं करना है. Okay, because it is quite harmful. It can burn you. So you can write down here. Strong acids are dangerous to drink, even their dilute solutions are harmful. मतलब अगर हम उसमें वाटर भी ऐड करके उसका सोल्यूशन प्रिपेयर कर लें
तो फॉर दैट मैटर वो भी काफी हार्मफुल होता है हमारी स्किन के लिए, कंज्यूमेबल नहीं है। तो जो आपके पास वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वीक ऑर्गेनिक एसिड कैन बी कंज्यूम्ड इन डाइल्यूटेड फॉर्म। ये स्ट्रॉन्गर फॉर्म में हमें उसको भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बट इन डाइल्यूटेड फॉर्म दे कैन बी कंज्यूम्ड। फॉर एग्जाम्पल, most of you people might be having vinegar in your home, है ना? So you have vinegar in the home. Vinegar is nothing but it is your diluted form of acetic acid. That means this one. So when we use diluted form of acetic acid, it can be consumed, है ना? आपके just noodles and everything में we use it. Got it? सिट्रिक एसिड भी कंज्यूम कर सकते हैं हम, टार्टरिक एसिड भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है, इवन जो आपके केचप्स होते हैं, दैट आल्सो हैज द विनेगर इन द फॉर्म, इन द डाइल्यूटेड फॉर्म। पिकल्स में आपके पास विनेगर होता है, ठीक है। और बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड यूज करते हैं। और जो आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जिसकी वजह से वो फिजी का फॉर्म आता है उसमें, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड। ओके, सोडा ड्रिंक्स में भी आपके पास जो फिल्स फॉर्म आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड। So weak acids in diluted form can be consumed, but strong acids can, even in the diluted form, they are very harmful. Now we will be talking about concentrated acids and dilute acids. Okay. If I want to differentiate between concentrated term and a dilute term, so concentrated term is going to have like any concentrated substance. It's not for even acid. For any concentrated substance, they will have the minimum amount of water. Okay, and for dilute acid, they are going to have much more amount of water as compared to concentrated one. So here we can write down the concentrated acid is the one which contains minimum amount of water, and a diluted acid is the one which contains more amount of water. Write down this. Okay. After this, let's talk about dilute acid. So dilute acid is nothing but your concentrated acid with water. So what you're going to do is you're going to just add water in the concentrated acid and you will get it diluted form. और तो कुछ खास change आने वाला नहीं है. Okay? तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी एसिड में वाटर ऐड करते हैं तो वो हमको बहुत ध्यान से ऐड करना होता है, बिकॉज वाटर और एसिड का जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लॉट अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड ऑल टुगेदर। जब ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होगा और अचानक से आपके पास दैट
the sparkles of this acid might come on you also. इसीलिए बहुत ही स्लोली स्लोली हम क्या करते हैं, जब टेस्ट ट्यूब लेते हैं उसको थोड़ा स्लैंटिंग पोजीशन पे रखते हैं, यहाँ पे आपके पास एसिड होता है और बहुत उसके साइड से सिंगल सिंगल ड्रॉप को हम पुट करते हैं टू मेक इट इनटू द डाइल्यूटेड फॉर्म। अदरवाइज अगर आप एकदम स्प्लैश करके डाल दोगे तो पूरा का पूरा जो एसिड है एकदम से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी और जो एसिड है वो आपके फेस पे आ जाएगा एंड यू विल फील द बर्न। ओके, तो ये चीज हमको केमिकल्स को हैंडल करते टाइम बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। सो इसमें वी कैन राइट डाउन the dilution of a concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring and not by adding water to concentrated acid. Okay, concentrated को मैंने short form में COMC करके लिखा है so that I don't have to write it again and again. So what they're saying is that अगर आप एसिड में वाटर लाइक ऐसे स्प्लैश करके ऐड करें तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बट इन द सेम चीज अगर हम ऐसा करें कि टेस्ट ट्यूब में वाटर ले लें और ऊपर से स्लोली स्लोली हम एसिड ऐड करें ड्रॉप वाइज, तो इट इज लाइक मोर प्रेफरेबल। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होता है बिकॉज एसिड का अमाउंट क्या है, काफी कम है। अगर आप ड्रॉप वाइज एसिड इसमें पुट करोगे स्लोली स्लोली तो large amount of heat or energy will not be released as compared to the one जिसमें आप एसिड में बहुत तेजी से वाटर को ऐड कर रहे हो। ओके, राइट डाउन दिस। Yes, Vikas, mild and weak acid is same thing. समझ क्या बोल रहे हो बेटा? I'm unable to understand you. What are you saying? Yes, Prahlad, you can write any reaction of acid with water. अगर आपको एग्जांपल लिखना है फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन। So how much water you can add, वो तो तुम पे डिपेंड करता है कि how much dilution you want to do। जरूरी नहीं है कि मतलब पूरा वर्ल्ड में ऐसा कुछ फिक्स अमाउंट नहीं है, डाइल्यूशन तो इज जस्ट एडिशन ऑफ वाटर। आपको अगर बहुत कम नाइन्थ में मोल्स तो पढ़े ही थे आपने, है ना? तो अगर मेरे पास 1 मोल एसिड है तो उसमें मैं अगर 50 ml वाटर ऐड कर दूं या फिर 100 ml वाटर भी ऐड कर सकती हूँ, 200 ml वाटर भी ऐड कर सकती हूँ, 1 लीटर भी ऐड कर सकती हूँ।
इट डिपेंड्स ऑन मी कि मुझे डाइल्यूशन कितना करना है. Okay, it totally depends on how much dilution I want to do. It's not any fixed thing. Okay, so now let's talk about the properties of acids. In properties of acids में we will be talking about different reactions also. कुछ physical properties की भी बात करेंगे and then reactions की भी बात करेंगे. तो प्रहलाद, तुम्हारा water के साथ का reaction हम इसी properties में बात करेंगे, ठीक है? No, Chandan, it will not become a weak acid. It will become a diluted acid. वीक एसिड नहीं हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी लाइक स्टिल स्ट्रॉन्ग, बट आपने उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में कर दिया तो इसलिए आपको वो वीक फील हो रहा है. एक्चुअली में इट इज नॉट वीक. हाँ, तो लॉट ऑफ वाटर ऐड कर दो विकास, क्या फर्क पड़ता है. बट आप जब एसिड को डाइल्यूटेड कर रहे हो तो किसी यूज के लिए करोगे ना, फालतू में मजे करने के लिए नहीं करते ना, कि आप एक ड्रॉप एसिड लेके उसमें 1 लीटर वाटर डाल दो, तो इट वोंट मेक एनी सेंस. हम कुछ सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में वर्क करने के लिए, तो उसमें कुछ अगर काम करना है उसके अकॉर्डिंगली मुझे कितना एसिड का डाइल्यूटेड फॉर्म चाहिए इन लेबोरेटरी, उसके अकॉर्डिंगली हम डाइल्यूट करते हैं. डाइल्यूशन कैन बी लाइक एनीथिंग. अब अगर इतना आप डाइल्यूशन करोगे तो उसमें हम ये मानेंगे कि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लेस, like negligible to it's quite negligible, you can say that. Now when we are talking about properties of acids, तो पहले physical properties की बात कर लेते हैं. So according to the physical properties, acids have a sour taste, है ना. एसिड का मोस्टली टेस्ट जो है वो आपको खट्टा सा ही मिलेगा. वेनिगर को ही आप देख लो, वो वीक एसिड है तो उसको आप टेस्ट कर सकते हो. स्ट्रॉन्ग एसिड को तो यू कैन नॉट टेस्ट बिकॉज योर टंग विल बर्न. तो वीक एसिड में घर पे वेनिगर होगा तो एवरीवन नोज इट हैज दी सावर टेस्ट. पिकल्स पिकल्स में भी सेम टाइप का टेस्ट होता है बिकॉज उसमें भी वेनिगर और एसिड प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट इज एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देन acid solution conduct electricity. ओके, तो जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमको वहाँ पे आयंस मिलते हैं और फिर जब हम उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इट कैन पास दी इलेक्ट्रिसिटी. इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम. ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इट इज रिगार्डिंग दी रिएक्शन लाइक केमिकल प्रॉपर्टी. so in this acid reacts with metal to form hydrogen gas. So very important reaction. ओके, तो कोई भी अगर हम मेटल ले रहे हैं, लेट्स से हमने जिंक लिया हुआ है, तो रिएक्शन कर रहे हैं हम H2SO4 के साथ विच इज एन एसिड. उसका एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं. जिंक आपके पास सॉलिड फॉर्म में है. तो जिंक reacts with H2SO4 and it leads to the formation of ZnSO4, which is your zinc sulfate. It is a type of salt. And again this will be present in aqueous. Salt है, aqueous medium में dissolved form में रहेगा plus H2 gas.
So this is what your basic reaction for any metal with acid is going to give you salt along with hydrogen gas. Okay. इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. लेट मी सी अगर I can find a video on YouTube regarding this experiment. Till then you write. Okay, done writing? Let me know. Why Yashas, H2 will not be formed in the case of copper? कॉपर के केस में हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनेगा? ऐसा क्यों लग रहा है तुमको? Ma'am, because copper is less reactive than hydrogen. Copper is less reactive than Hydrogen. हाँ, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करने वाला है. थोड़ा बहुत रिएक्शन होने वाली है, ऐसा नहीं होता. अगर मेटल है, क्योंकि हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही है, रिएक्शन विद H2SO4 हो रहा है. हाइड्रोजन से थोड़ी आप रिएक्शन कर रहे हो. हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना मैम बेसिकली. हाँ, तो मैम. रिएक्टिविटी देखना पड़ेगा ना मैम फिर तो. किस केस में? मैम इसी केस में मैम ZnH2 को डिस्प्लेस करके ZnSO4 बना रहा है. तो मैम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है और उस केस में हमको रिएक्टिविटी देखना पड़ेगा ना मैम. हाँ, रिएक्टिविटी देखना तो पड़ेगा, बट कोई भी मेटल जो है, आप अगर उसकी लाइक नॉर्मल कंडीशन में अगर आप ऐसे कॉपर को रख दोगे H2SO4 में, तो दैट इट माइट नॉट रिएक्ट. बट अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन बिल्कुल नहीं होता है. ओके मैम. और हम यहाँ पे जो एसिड यूज कर रहे हैं वो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, तो वो रिएक्शन कर जाते हैं. ओके मैम. ओके, फाइन. सो लेट्स सी दिस वीडियो जिसमें you can see the screen, everyone. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. I don't know why volume is not there. Okay, 1 second. Okay, just 1 minute. Volume नहीं आ रहा है. Latest tube. Delivery tube. 1 hole rubber cup. Glass cup with soap water. Zinc granules. And hydrochloric acid. First, we have to take about 10 ml of dilute hydrochloric acid in a test tube.
Then add few zinc granules to it. Close the test tube with one hole rubber cork containing delivery tube. Place another end of the delivery tube into the soap water. Observe here, gas-filled bubbles are formed in the soap solution. Observe once again carefully. Gas bubbles are evolved from the surface of zinc granules in the acid. This gas is captured as gas bubbles by using soap water. Now we are going to keep a burning flame near gas bubbles. Observe carefully what will happen. Gas explodes with pop sound. This indicates that the gas is hydrogen. Let us observe once again the test for hydrogen. Let us test the hydrogen gas in single bubble. If we Okay, so I hope you understood the video and what is happening there. You can clearly see that hydrogen gas is released, and since hydrogen gas is released, तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुआ है? तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं. हाइड्रोजन गैस जो है वो एक बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है, तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. ओके, तो that pop sound is blast only, Prahlad. Pop sound, like what do you understand by a pop sound? कि कैसा साउंड होगा? पॉप साउंड मतलब ये है कि वॉइस होगा. तो जो भी वॉइस करके बर्न होता है, लाइक आप नॉर्मल चीजें बर्न करोगे तो वो ऐसे नहीं बर्न होते ना, आवाज नहीं आती उसमें. खाना कुक होता है ऐसे पॉप साउंड से बर्न नहीं होता. पॉप साउंड इज नथिंग बट एनी लाइक अचानक से एक ब्लास्ट टाइप का हो जाना, दैट इज ओनली पॉप. और हम जब लेबोरेटरी में करते हैं तो वो चीजें बहुत स्मॉल लेवल पे होती है, तो वो हमको पॉप साउंड ही आता है. Okay, so how to test the presence of H2 gas? What you're going to do is bring a candle, that is your burning candle, near the mouth of test tube, and a pop sound will be observed. ओके, इसका एक्सपेरिमेंट, आप ये सब एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, है ना. बट ऑफ कोर्स आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो है वो उनसे हमको अभी डील नहीं करना है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको लैब में करवाए जाएंगे. विदाउट any teacher's supervision, you should not try all these experiments in home. So this is your stand. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब को अटैच कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास मान लो जिंक है और दिस इज योर H2SO4. यहाँ पे ऊपर से हमने एक कॉक पुट कर दिया है ताकि क्लोज कर दें, और जो भी गैस रिलीज हो रही है उसको हम एक पाइप से पुट कर रहे हैं इस सोप सॉल्यूशन में. तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बबल्स दिखाई देंगे इसके सरफेस पे. कुछ बबल्स बाहर भी आ जाएंगे. तो दीज बबल्स आर गोइंग टू बर्न विद अ पॉप साउंड,
यहाँ पे कैंडल लेके आओगे, this is burning candle, and you will burn with a pop sound. Okay, these are your soap bubbles. This is stand, test tube. Okay, draw this diagram. बात करेंगे प्रहलाद अभी वाटर और एसिड का आगे. एक्चुअली कोई रिएक्शन नहीं होती है, H प्लस आयन रिलीज होता है. विल टॉक अबाउट इट लेटर. अभी ये करो. Done? चलो, next reaction we will be talking about reaction with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. ओके, मेटल कार्बोनेट्स की अगर हम बात करें तो वो सारे कार्बोनेट्स जिसमें CO3 प्रेजेंट हो, CO3 2 माइनस आयन्स प्रेजेंट हो. ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में HCO3 माइनस आयन प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल अगर हम ले लें Na2CO3, तो दिस इज योर मेटल कार्बोनेट्स. और इफ वी राइट NaHCO3, दिस इज योर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. ठीक है, दोनों के ही केस में अगर मैं मेटल कार्बोनेट ले रही हूँ और उसका रिएक्शन करा रहे हैं हम एसिड से, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर. सेम इज द केस ऑफ इफ आई टेक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और along with that I am taking acid. अगेन ये हमको देगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2. फॉर एग्जाम्पल, तो हमने ऊपर कार्बोनेट्स की एग्जाम्पल में लिखे हैं, इसी की बात करते हैं. इफ आई एम रिएक्टिंग Na2CO3 विथ एसिड, लेट्स से हम ले रहे हैं HCl, दिस इज गोइंग टू गिव यू NaCl प्लस CO2 प्लस H2. बैलेंस कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 2HCl, यहाँ पे हो जाएगा 2 NaCl. दिस इज योर
sodium carbonate. This is hydrochloric acid. This is sodium chloride, which is a salt. This is carbon dioxide gas, and this is water. हाइड्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हो. ऐसे अगर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लूँ, जैसे NaHCO3, उसका रिएक्शन करा रहे हैं हम HCl के साथ, तो अगेन हमको दे देगा सेम प्रोडक्ट NaCl प्लस CO2 प्लस H2. बैलेंस करोगे तो कुछ ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है. सो दिस इज योर सोडियम हाइड्रोजन carbonate. This is your hydrochloric acid. This is sodium chloride, again carbon dioxide plus water. Write down this. Okay. Next is your which portion, Puneet? Beginning में क्या विकास, क्या समझ में नहीं आया? You asked me which portion you didn't understand. No, you cannot write hydrogen peroxide as hydrogen dioxide. प्रहलाद, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपना उसका बॉन्डिंग अलग होता है, पर एसिड्स होते हैं वो, पर बॉन्डिंग होती है. दिस रिएक्शन समझ में नहीं आया, उसको लर्न करना है. रिएक्शन में समझने के लिए कुछ है नहीं. मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो सॉल्ट और CO2 और H2O रिलीज करेगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न. तो जिसका हमने एग्जांपल में बात की है कि अगर आई हैव Na2CO3, तो Na2, 1 सेकेंड, इफ आई एम टेकिंग दिस Na2CO3 HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaCl और CO2 H2O तो कॉमन है, वो तो बनेगा ही. दिस इज द जनरल रिएक्शन, आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी मेटल कार्बोनेट लोगे तो दिस इज व्हाट प्रोडक्ट्स यू आर गोइंग टू गेट. तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा. मेटल कार्बोनेट्स में सिर्फ कार्बोनेट्स फॉर्म होंगे, दैट इज दिस आयन इज योर कार्बोनेट आयन. ये भी याद करना पड़ेगा. और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCO3 माइनस होता है, यहाँ पे CO3 2 माइनस, यहाँ पे HCO3 माइनस, तो एक हाइड्रोजन लग गया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया बस. प्रहलाद, बॉन्डिंग अलग होती है H2O2 में. ऑक्सीजन देख के हम नेमिंग नहीं करते हैं. H2O2 में इस तरीके से दो ऑक्सीजन साथ में जुड़े होते हैं, इसीलिए जब दो ऑक्सीजन साथ में जुड़ते हैं तो उसको हम पर से नेमिंग करते हैं. तो इसीलिए इट इज नोन एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ना कि हाइड्रोजन ऑक्साइड. उसके
उसका नेमिंग सब कंपाउंड को नेम करने का पैटर्न अलग है ना। अब मैं सेम ही नाम रख दूंगी H2O2 का और H2O का, तो फिर लॉजिक क्या हुआ? मेरे को कैसे पता चलेगा हम वाटर की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात कर रहे हैं? वो बॉन्डिंग अलग होती है, इसलिए नेम अलग है उसमें। ओके, सो पहले वाले रिएक्शन में जब हम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कर रहे थे तो हमने देखा था हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। अभी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, वी हैव यूज दिस बर्निंग कैंडल, और हमने देखा कि पॉप साउंड से बर्न हो रहा है। ऐसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी टेस्ट कर सकते हैं कि बिकॉज कौन सा गैस रिलीज हो रहा है हमको नहीं पता, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है। तो अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करना है, सो वी आर गोइंग टू पास इट थ्रू दी लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो भी आपके पास CO2 रिलीज हुआ है उसको अगर हम पास कर दें उसके थ्रू, सो वी आर गोइंग टू गेट CaCO3, दैट इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस वाटर। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर होता है, इट इज गोइंग टू गिव यू व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में PPT लिखते हैं। तो पूरा जो आपके पास लिक्विड है वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि CO2 जो है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, एंड दिस इज योर लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ लाइम वाटर। आपने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो वो पूरा का पूरा जो आपके पास सोल्यूशन है वो कैसा टर्न हो गया? मिल्की। तो दिस इज द टेस्ट टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Write down this. Okay, one second, everyone. So let's see this one video also for this particular reaction. Okay, just 1 minute. Hi. Going gas is evolved. For doing this activity, we require iron stand, test tube, delivery tube, chisel funnel, lime water, sodium carbonate, hydrochloric acid, and 2-hole rubber cup. First, we have to take about 5 milligrams of sodium carbonate or sodium hydrogen carbonate in a test tube. Next, take lime water in another test tube and keep it in a stand.
Then close the test tube with two-hole rubber cock containing fizzle funnel and delivery tube. Place another end of the delivery tube into the lime water. Now we are adding about 2 ml of dilute HCl to sodium carbonate. Observe carefully what happening here. The gas which is formed in the test tube passes through lime water. Due to this, lime water turns into milky white. It indicates that the evolved gas is carbon dioxide. Observe carefully. Water drops are also formed in the test tube. If we repeat the above experiment by using any acid like sulfuric acid, Okay, so I hope you understood the reaction, that what is exactly happening, like laboratory में how reaction happens. Okay, this is what the thing represents. अब अगर आप मान लो excess of CO2 को पास कर देते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, इसके बहुत सारा आप CO2 जो है उसमें पास करे जा रहे हो. Okay, so next point here will be if excess of CO2 is passed through lime water, मतलब lime water के थ्रू आप CO2 बहुत देर तक अगर पास कर दे रहे हो, तो जो आपके पास white PPT फॉर्म हुआ है, the white PPT form like precipitate formed, जो कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का है, it forms CaHCO3, that is calcium हाइड्रोजन कार्बोनेट. और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता है, एंड इट डिजॉल्व्स इन व्हाट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो आप ये बोल सकते हो इट डिजॉल्व्स इन द सॉल्यूशन एंड वी गेट अ क्लियर लिक्विड. हमको एक क्लियर लिक्विड मिल जाएगा. तो जहाँ पे वो मिल्की दिख रहा था, अगर आप उसको कंटिन्यूसली नेक्स्ट 10 मिनट तक उसमें से CO2 पास करते रहोगे, तो दैट इज गोइंग टू, जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो डिजोल्व हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड दिस सॉल्यूशन विल बिकम क्लियर. राइट डाउन दिस. प्रहलाद, बॉन्डिंग जो होती है हमेशा कोई भी मेटल या नॉन मेटल और ऑक्सीजन के बीच में होती है. तो इस टाइप के बॉन्डिंग को हम ऑक्साइड बोलते हैं. जैसे आप वाटर ले लो, वाटर में हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन से ऑक्सीजन से एक ही बॉन्ड जुड़ा हुआ है. तो ये सब आपके ऑक्साइड्स होते हैं. जब दो ऑक्सीजन साथ में जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं पर टाइप की बॉन्डिंग. इसीलिए H2O2 आपके पास परऑक्साइड होता है, ना कि ऑक्साइड. बाकी आप कोई भी चीज, कोई भी बॉन्ड देख लो, SO2 नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, Na2O मेटल से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन. दो ऑक्सीजन साथ में नहीं जुड़े होते. जब दो ऑक्सीजन साथ में जुड़े होते हैं देन इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग. लिखो ये. आप पुनीत बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो चाहे तो, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट. Okay. Same experiment can be repeated through for sodium hydrogen carbonate. Just write down. Same experiment
is repeated for sodium hydrogen कार्बोनेट, सेम टाइप का रिएक्शन होगा, कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा। तो इनकेस अगर एग्जाम में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाता है तो वो भी आपको लिखने आना चाहिए। फॉर दैट मैटर होमवर्क में करना है इसको, सारे रिएक्शन जो ऊपर के 3 रिएक्शंस है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए भी लिख के देखना। चलो, अगर किसी को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ओके, तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता है, दैट इट शुड हैव एनीथिंग विच न्यूट्रलाइजेस द एसिड। तो आपके स्टमक में जब एसिडिटी होती है तो यू फील दिस बर्निंग सेंसेशन, तो अगर आप उसमें कुछ भी बेस डाल दोगे, ओके, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा एंड आपको बर्निंग सेंसेशन से क्या मिल जाएगा, आराम मिलेगा। तो यूजुअली जो एडिबल हम यूज करते हैं दैट इज योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज योर बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो इनो जो आपका आता है, जो ऐड आता है, अगर आप उसके कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो पीछे उसके बॉटल में देखना क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, यू विल अंडरस्टैंड। वो एसिडिटी के टाइम पे आपको बेटर फील हो उसके लिए हम यूज करते हैं, ओके। तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को, और जिसकी वजह से हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, दैट इज ऑल्सो योर बेकिंग सोडा, काफी जगह यूज करते हैं। एंटी एसिड्स आपने सुने होंगे, टैबलेट्स आते हैं डाइजेशन एंड एवरीथिंग के लिए, दैट इज ऑल्सो फॉर दिस थिंग ओनली, एसिडिटी इन द स्टमक, ओके। सो राइट डाउन, if someone is suffering from the problem of acidity, then taking baking soda solution, which is your sodium hydrogen carbonate. So then taking baking soda solution will provide the relief from acidity. Write down this. आगे ये भी लिख सकते हो, as it neutralizes the acid. डन राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एसिडिटी के लिए लेमन वाटर कोई सजेस्ट नहीं करता प्रहलाद, हु सजेस्ट लेमन वाटर ड्यूरिंग एसिडिटी, दैट लाइक दैट इज ओनली फॉर लेमन में वो सोडा मिला होता है कई बार, इट्स जस्ट नॉट द सिंपल लेमन वाटर। नींबू पानी पीने से आपको एसिडिटी में कोई भी नहीं होगा, एंड नो वन सजेस्ट दिस थिंग, एंड इफ एनीवन इज सजेस्टिंग दिस तो प्लीज करेक्ट देम, that just not be the normal lemon nimbu pani, it might be having some soda present in it, okay। और ऐसा कुछ सजेस्ट कर रहा है तो उनको मना करो,
इट माइट जस्ट गिव यू अ कूलिंग सेंसेशन कि पेट में थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील हो रहा है मिंट एंड एवरीथिंग की वजह से, बट देयर विल नॉट बी एनी रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी. Okay, next is your acids reaction with bases. ओके, सो एसिड एंड बेस का तो सिंपल रिएक्शन होता है. आप कोई भी एसिड ले लो और उसको बेस के साथ रिएक्शन करो, दैट इज सिंपली गोइंग टू गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर. ओके, so this is a type of neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. अब जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसका कोई खास एसिडिक या फिर बेसिक बिहेवियर नहीं होता. ओके, फॉर एग्जाम्पल if I am taking NaOH plus HCl, NaOH aqueous medium में रिएक्शन हमेशा लिक्विड मीडियम aqueous मीडियम में ही होता है. दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड and this is your hydrochloric acid. Okay, this leads to the formation of NaCl, that is your sodium chloride plus water. So this type of reaction is called as neutralization reaction. Write down. ओके, सो एसिड बेस का भी हम एक रिएक्शन देख सकते हैं. उसका एक काफी एक टाइट्रेशन, देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज टाइट्रेशन. ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन. अब जब आप एसिड बेस रिएक्शन करवाते हो तो एसिड बेस में कुछ कलर, हमको पता कैसे चलेगा कि कोई भी रिएक्शन जो है आपके पास दैट हैज कंप्लीटेड और नॉट? ओके, तो 1 सेकेंड, टू नो दैट कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि हम इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या देखने वाले हैं. एक हमारे पास एसिड होगा, एक हमारे पास बेस होगा, दोनों को हम रिएक्ट करवाएंगे. ठीक है, जब दोनों रिएक्ट करेंगे इक्वल अमाउंट में रिएक्शन होने वाली है. जैसे ही रिएक्शन फिनिश हो जाएगी हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन खत्म हो गई है? लाइक एसिड, जैसे हमने रिएक्शन देखा NaOH प्लस HCl, ये भी हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है, ये भी एक ही मॉलिक्यूल है, तो रिएक्ट करके फॉर्म कर रहा है NaCl प्लस H2. तो ये सब न्यूट्रलाइज हो जा रहा है. तो मुझे कब पता चलेगा रिएक्शन स्टॉप हो गई है? तो हम कंटेनर में ऐड करते हैं फेनोल्फथलीन इंडिकेटर. ठीक है, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर आपको पता ही है, बेस के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, आपको पिंक कलर देता है. हमने स्टार्टिंग में इंडिकेटर्स की बात की थी. तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से हम बेस ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज और यहाँ पे हमारे पास एसिड होगा और इंडिकेटर भी होगा. फेनोल्फथलीन इंडिकेटर रिएक्ट नहीं करता है ना ही एसिड के साथ ना ही बेस के साथ. ठीक है, तो जैसे ही आप बेस इसमें पुट करोगे तो एसिड बेस रिएक्शन होते रहेगा. जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन फिनिश हो गया, मतलब सारे के सारे एसिड्स कंज्यूम हो गए और आपने एक भी एक्स्ट्रा ड्रॉप बेस का ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन में बेस एक्स्ट्रा हो गया. यस और नो?
You have got extra base in the solution, no? क्योंकि सारा का सारा एसिड तो रिएक्ट कर रही है, तो जो भी आप एक्स्ट्रा ड्रॉप आपने ऐड किया वो बेस है। तो अब इस सॉल्यूशन में बेस एक्स्ट्रा हो जाएगा, और जैसे ही बेस एक्स्ट्रा हो जाएगा आपके पास फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर जो खुद कलरलेस होता है वो बेस के प्रेजेंस में पिंक कलर देता है। तो आपको सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? पिंक कलर का दिखाई देगा। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एसिड बेस का जो रिएक्शन है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इस टाइप के रिएक्शन को, जो प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसको बोलते हैं टाइट्रेशन। ओके, दिस इज नोन एज टाइट्रेशन। अभी वीडियो देखना, I have just given you the brief view. He will be explaining you that thing only. In this video, I will be showing you how you can perform titration in the lab. But before we start, we need to ask ourselves, why do we need to do titration? Now, titration is useful when you are giving a solution that you don't know the molarity of it. Okay, ये थोड़ा सा आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, तो let's Now, सीधा एक्सपेरिमेंट in पे order जंप to करते हैं। start your titration, you need to take a known volume of your analyte. So I will be taking 10 milliliter with a volumetric pipette. So this is going to give me a very accurate volume. So my analyte here is Okay, so what they are using here is, ये जो एसिड का प्रॉपर अमाउंट पुट करने के लिए कि कितना एसिड हम ले रहे हैं, हमको ml में काउंट करना पड़ेगा ना। तो वो जो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वी यूज दिस पिपेट। ओके, वन थिंग, 1 minute. Yes, so as I was saying, 1 second. Okay. Everyone just give me 1 minute. Okay, so as I was saying that this particular instrument is used, and it is your pipette. This is known as pipette, जिसमें हम exact measure कर सकते हैं कि कितना ml हम ले सकते हैं। Like error का chances बहुत कम होते हैं इसमें। hydrochloric acid. Okay, so this is 10 milliliter of my hydrochloric acid. Now I can start the titration, but wait a second. When do I know that I have added enough of the titrant to my analyte? For that, I will be using what is called an acid-base indicator, and in this case, I will use phenolphthalein. Phenolphthalein is an acid-base indicator that is colorless in acidic medium, and once the medium turns to basic, it turns to pink. So I will be adding to the acid few drops, 3 to 4 drops. As you can see, the solution color did not change. Okay, so I should have a good stirring, and now I'm ready to start. So you understood
उसने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसमें एसिड पुट किया, थोड़ा सा फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डाला, कलर कोई चेंज नहीं होगा फिनोल्फथालीन इंडिकेटर से, बिकॉज एसिड के प्रेजेंस में फिनोल्फथालीन डज नॉट गिव एनी चेंज इन कलर. my titration. So I will be adding Now this big I hope you are able to see this. यहाँ पे एक वो like पीछे white background है, तो I don't know if you're able to see it properly or not. यहाँ पे एक container है and this is known as your burette. Okay, burette contains NaOH. Now what he is going to do is he is going to slowly and steadily put NaOH from this burette to this conical flask. the hydrochloric acid solution. You can see that the pink color starts to stay ready to start my titration. So I will be adding the titrant to the analyte, okay? And I will be monitoring the color of the solution. When I start to see that the color of the phenolphthalein starts to stay for a longer time, I will slow down the addition of the base. As you can see now, if I just go drop by drop, you can see that the pink color appears, then quickly disappears. This means that I still have an acidic medium. Now, when I see that the color starts to take longer, zero concentration of the sodium hydroxide that I have used, I know how much I need. We need to look at the take the average. Okay, just 1 minute. As you can, when I see that the color starts to take longer time to disappear, this means I'm close to the equivalence point. And now, when I consume Okay, so this was your experiment. I hope you got the rough idea. I will like explain you what he actually did in the experiment. He yes, so what he did, अब आपने क्योंकि वीडियो देख लिया तो इट विल बी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वांट टू से हियर. यहाँ पे हम लेते हैं एक बड़ा सा ब्यूरेट, ठीक है. यहाँ पे एक नॉब होता है जिससे हम इस ब्यूरेट को ओपन करते हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH ड्रॉप होता है. यहाँ पे हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया हुआ है जिसमें हमारे पास है HCl. इसको हमने फिल किया है NaOH से, इसको अटैच किया है एक स्टैंड से. दिस इज योर स्टैंड, ओके. और देन वी आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट. वी हैव एडेड phenolphthalein indicator. Phenolphthalein indicator is colorless in acid and pink in base. ओके, सो जब आप धीरे धीरे यहाँ से ड्रॉप वाइज NaOH पुट कर रहे हो इस कॉनिकल फ्लास्क में, तो आपको दिख रहा था एक्सपेरिमेंट की जहाँ पे ड्रॉप आ रहा था वहाँ पे अचानक से आपको पिंक कलर दिखाई दे रहा था, फिर वो गायब हो जा रहा था. तो गायब क्यों हो रहा था? बिकॉज इट इज गेटिंग रिएक्टेड विद द एसिड. एसिड के साथ वो रिएक्शन कर रहा था. जैसे ही एसिड के साथ रिएक्शन हो गया बेस खत्म, तो आपको कलर नहीं दिख रहा था. तो धीरे धीरे आप ये प्रोसेस तब तक रिपीट करोगे जब तक पिंक कलर जो है आपको लाइट पिंक कलर परसिस्टेंट ना मिले. जैसे ही आपके पास पिंक कलर डिसअपियर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उस रिएक्शन मिक्सचर में कंप्लीट रिएक्शन हो चुकी है. जितना आपने एसिड लिया था उतना ही बेस जो है आपस में कंबाइन करके उन्होंने सॉल्ट फॉर्म कर लिया है और अब सॉल्यूशन में बिल्कुल भी एसिड नहीं बचा है. तो जब आपने एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ बेस डाला जिसकी वजह से सॉल्यूशन नाउ कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ दिस थिंग बेस. अब मोर अमाउंट ऑफ बेस है हमारे पास यहाँ पे, तो हम ऑफ कोर्स फिनोल्फथालीन
का जो कलर है वो पिंक हो जाएगा, और जैसे ही पिंक हो जाएगा इसका मतलब मुझे समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन हैज कंप्लीटेड. सो दिस इज अ टाइप ऑफ लाइक एसिड बेस रिएक्शन. लिटमस पेपर आप यूज कर सकते हो बेटा. अब बार बार उसमें लिटमस पेपर डिप करके थोड़ी देखोगे यशस. लाइक हमको अपना काम आसान करना है ना. बार बार लिटमस पेपर आप डिप करोगे, फिर वापस एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर डिप करोगे, फिर वापस एक्सपेरिमेंट करोगे. इट्स वेरी टीडियस. दैट इज वाई हम उसको फिनोप्थलीन इंडिकेटर ले रहे हैं. नहीं नहीं, लिटमस सॉल्यूशन नहीं यूज करते हम. फॉर टाइट्रेशन वी डोंट यूज लिटमस सॉल्यूशन, वी यूज फिनोप्थलीन इंडिकेटर ओनली. अभी हम लिटमस सॉल्यूशन की भी बात करेंगे. वो अपना उसका डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है. इट शोज अ रेंज ऑफ कलर. ठीक है, ये समझ में आया सबको? हाँ ना, कुछ बोलो तो पता चलेगा समझ आया नहीं आया एक्सपेरिमेंट. ओके, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आप पूरा 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं. हम उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं. ओके, बट दैट यू आर गोइंग टू डू इन लाइक 11th स्टैंडर्ड. ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं. नेक्स्ट इज योर acids react with metal oxides to form salt and water. ओके, सो कोई भी आप मेटल ऑक्साइड लोगे, एनी मेटल ऑक्साइड, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके आपको देने वाला है सॉल्ट प्लस वाटर. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग कॉपर ऑक्साइड, उसको रिएक्शन किया HCl के साथ, तो ये फॉर्म करेगा CuCl2, दैट इज aqueous in nature, plus H2O, that is liquid. This is solid. Balance कर लो, aqueous in nature. So this is copper oxide, which is black in color. It is reacting with hydrochloric acid. Then it will lead to the formation of copper chloride. So this is copper chloride. यहाँ पे आपको green color observe, copper chloride का color होता है green, and then you have water. Okay, write down this reaction. Okay, so let's see a video for this reaction also. It will be easy for you people to understand. We will see what happens when metal oxides react with an acid. We need test tube, copper oxide, and dilute hydrochloric acid. Take some copper oxide in the test tube. Add dilute hydrochloric acid to it, drop by drop, and shake. You will see the solution has turned green. The copper, which was in insoluble form in copper oxide, has reacted with hydrochloric acid
and formed a soluble salt with the chloride ion from the acid and formed copper chloride. The solution now contains copper chloride. When metal oxides react with an acid, metal oxides form a salt with the negative ion of the acid. In this case, the reaction can be Okay, so I hope you understood the reaction. कुछ difficult नहीं था. Simply copper oxide को mix किया HCl के साथ. Copper आपने देखा black color का था. It led to the formation of copper chloride. That is your green in color plus water. Okay. Oh, fine. So, right, have you written this? Yes, ma'am. Okay. Next is acids have corrosive nature. ठीक है. corrosive nature means corrosion करते हैं. अगर metal ले लो और especially cloth पूरा burn कर सकते हैं. Okay, so you can write down here mineral acids cause severe burns on the skin and eat up materials like cloth, wood, metal structures, and stonework. So they are corrosive in nature. ठीक है. करोजन क्रिएट करते हैं, खराब करते हैं बेसिकली चीज़ों को. पूरा क्लोथ ही आपके पास टीयर अप हो जाएगा. स्किन में अगर एसिड गिर जाता है तो यू विल हैव अ बर्न आल्सो इन दिस ऑन योर स्किन. इसीलिए जब भी हम एसिड से डील कर रहे होते हैं तो वी हैव टू हैंडल द एसिड्स लाइक वेरी केयरफुली. राइट डाउन दिस. इसीलिए आप लैब में अगर विजिट करोगे तो आप देखोगे एसिड्स कभी मेटल के बॉटल में नहीं रखते हम, या फिर हम कभी भी उसको प्लास्टिक्स में नहीं रखते. ठीक है. बिकॉज इट इज गोइंग टू मेल्ट द प्लास्टिक और मेटल के साथ रिएक्शन कर जाएगा और मेटल को खराब कर देगा. इसीलिए वी पुट द एसिड्स इन अ ग्लास कंटेनर. ग्लास कंटेनर में रखते हैं. ग्लास कंटेनर में एसिड जो है रिएक्शन नहीं कर पाता है और करोजन भी नहीं होती है उसमें. दैट इज वाई वी स्टोर एसिड्स इन अ ग्लास कंटेनर. Okay, so we will be finishing for today's class till here. Next